Hey guys, welcome back to my channel, and in this lecture we are going to cover how to create our own routes। यानी कि हम आज सीखने वाले हैं कि हम routes कैसे create कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और हम अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और स्ट्रक्चर में लाएंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। So guys, before starting the lecture, do subscribe my channel by pressing the red button and also press the bell icon in order to get the latest notification of videos। यानी कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्वालिटी कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी मिले। So guys, we are again back in our favorite VS Code editor, and in the previous lecture we have already covered that we have created controller folder, and we have separated our code, that is handler function we have separated, and we have put in our VS user controller.js file. And we have already talked about that how restructuring is very important, how refactoring of the code is really important, because it is somewhere going to help us in the future. Because for example, if some bug has happened, then you can easily debug your code, or some other person has joined your team, so he can easily understand your code, whatever you have written. So it's really beneficial, right? And if you haven't watched the previous videos where we have separated the controller handler functions, so please watch that video to understand each and everything perfectly. And now we are going to cover in this lecture how to create our own routes. Since we have created one folder, that is routes folder, but we haven't applied routes because routes can also be in thousands, so that can be really hectic. So here we are going to separate the routes as our requirement or as per the specification. For example, here these are routes related to user, so these will be in user. Suppose if the project is about university, अगर project एक university के about है तो उसमें क्लासेस के राउट्स अलग हो जाएंगे, एक अलग फोल्डर में जाएंगे, एक अलग मॉड्यूल में बनेंगे उसके. सो दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड दी वी आर गोइंग टू डू दिस, राइट? सो आई होप टिल नाउ यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई हैव टॉक्ड. सो गाइस, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन राउटर, यानी कि हम अपने खुद के राउट्स कैसे क्रिएट करेंगे. सो लेट्स सी. सो फॉर क्रिएटिंग योर ओन राउटर वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज वन वेरिएबल यूज़र राउटर. सिंस our data is about users, हमने different users ले रखे थे, so that is why we have given our variable name user router, so that we can create router with a meaningful name. यानी कि meaningful name के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, आप यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्लासेस होंगी, तो टीचर्स होंगे, तो आप टीचर्स राउटर बनाएंगे. अगर टीचर्स के लिए बनाएंगे राउट्स तो आप टीचर्स राउटर, अगर आप स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे तो स्टूडेंट राउटर. सो लाइक दैट यू हैव टू गिव सम मीनिंगफुल नेम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस राउटर इज़ अबाउट, राइट? सो here, since this router is about users, so we are going to use user router. And then what we are going to do, we are going to use express dot router. And here what we did, we have created one middleware user route with the name user router, which is going to manage all the routes. यानी कि हमारी जो भी राउट्स होंगे उनको मैनेज करेगा. अब किस URL पे मैनेज करेगा, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मिडलवेयर. So we are going to use this middleware, and the request URL will be v1/API. यानी कि जब भी इस API इस रिक्वेस्ट URL को हिट करेगा, कोई भी रिक्वेस्ट यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, सो दिस यूज़र राउटर मिडलवेयर इज़ गोइंग टू रन. यानी कि ये यूज़र मिडलवेयर राउटर जो है इट विल रन, राइट? एंड इट विल राउट द कोड. ओके, इट विल राउट अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट. यानी कि अगर गेट रिक्वेस्ट होगी तो गेट मेथड को वो हैंडल करेगा. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू राइट इट. लेट्स सी फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो हियर व्हाट विल डू, यूज़र राउटर डॉट राउट. अब ये राउट क्या करेगा, जब भी हम यहाँ पे एक स्लैश लगाएंगे तो इस स्लैश का मतलब है कि जब भी ये URL हिट करेगा, यहाँ पे एक स्लैश का मतलब है v1/API, राइट? तो जब भी हम इस URL को हिट करेंगे, तो अगर मान लो गेट रिक्वेस्ट हुई तो वो क्या करेगा, हैंडल यूज़र कंट्रोलर डॉट
गेट ऑल यूज़र करेगा हैंडल। अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट हुई तो यूज़र कंट्रोलर डॉट क्रिएट यूज़र हैंडल करेगा, एंड पैच रिक्वेस्ट हुई तो उसको कौन हैंडल करेगा, यूज़र कंट्रोलर डॉट अपडेट यूज़र हैंडल करेगा। सो लाइक दैट वी आर गोइंग टू हैंडल डिफरेंट HTTP रिक्वेस्ट, यानी कि हम डिफरेंट HTTP मेथड रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। तो गेट होगी तो गेट करेंगे, पोस्ट होगा तो पोस्ट मेथड को हैंडल करेंगे, पैच रिक्वेस्ट हुई पैच में रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। नाउ लेट्स डिलीट दिस बिलो कोड ओवर हियर। सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू हैंडल। अब फॉर एग्जाम्पल हम तो यहाँ पे भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सारे डेटा को फेच कर रहे हैं, या तो हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हम किसी पर्टिकुलर यूज़र को अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे किसी यूज़र को अपडेट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल आए, तो पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल के लिए उसको आपको आईडी भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो फॉर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वी राइट colon ID, so or XYZ whatever the variable name you want to give for that particular ID, store that particular value which you are sending from the request side. So that's why, so for that we are going to write like this, user router dot route, and then here we will write ID, not there. Okay, यहाँ पे हम इसको नहीं करेंगे, हमारी API एक ही रिक्वेस्ट URL होने वाली है, उसके बाद जो भी हम चेंजेस करेंगे उसके आगे के करेंगे, राइट। अब फॉर एग्जांपल मान लो इसके आगे कोई और पेज है, कोई और रिक्वेस्ट URL जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लाइक दैट वी विल राइट लाइक दिस, राइट। तो आपको अभी तक ये समझ में आ चुका होगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हम एक मिडलवेयर पहले क्रिएट करेंगे राउटर के नाम से, तो एक्सप्रेस डॉट राउटर से हम एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे, उसके बाद उस मिडलवेयर को यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर जो भी आपकी रिक्वेस्ट URL होने वाली है उस रिक्वेस्ट URL पे, और उसके बाद वो क्या करेगा, आपकी गेट रिक्वेस्ट हुई तो भाई वो गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, अगर पोस्ट हुई तो पोस्ट को हैंडल करेगा, अगर पैच हुई तो पैच। सो यू कैन सी दैट earlier those lines were about 4 different, we are writing for each particular method, but here what we are doing, we are writing for once. So what it is doing, it is following the drive principle, यानी do not repeat your code, यानी अपनी कोड को कभी रिपीट नहीं करना चाहिए। So like that it is you can say optimizing your code and making it easier in order to understand it as well. So here by reading only you can understand that what it is doing. User router is routing on the particular URL, and whatever the HTTP method will be, it will act according to the HTTP method, right. One thing I would like to discuss here, the middleware you should write after declaring all these routes. आप जो app.use जो आप उस मिडलवेयर को यूज़ करेंगे उसको आप हमेशा एट द एंड सारे HTTP मेथड को डिक्लेयर करने के बाद ही उसको यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? सो आप अगर मान लीजिए मैं app.api को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो अभी क्या होगा, अभी आपका यूज़र राउटर नाम का मिडलवेयर क्रिएट हुआ, क्रिएट करने के बाद जो भी रिक्वेस्ट आई वो तो यहाँ पे ये हैंडल कर रहा है, बट वो राउट तो आपके डिक्लेयर हुए नहीं है। तो जब राउट डिक्लेयर नहीं हुए तो वो किसको हैंडल करने के लिए देगा? सो दैट कैन क्रिएट इशू। सो फॉर दैट first of all we have to declare all the HTTP method requests, how it is going to handle, and then we are going to use that router, right. So I hope till now you understood what we have done over here, how we are creating the routers. Now we are going to refactor our code. हम अब अपने कोड को रिफैक्टर करने वाले हैं। सो रिफैक्टर हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने क्या किया है कि राउट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जिसमें हमारे सारे राउट्स होने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा एक मैंने फ़ाइल क्रिएट की यूज़र राउटर नाम से, तो हमारा जो राउटर यूज़र राउटर है वो इसके अंदर जाएगा। अब अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोजेक्ट हुआ तो टीचर्स राउटर्स के लिए आप टीचर्स राउटर नाम की एक फ़ाइल बनाएंगे, उसमें टीचर्स राउटर रखेंगे ताकि आपका जो कोड है वो मिक्स ना हो, मतलब कॉम्प्लेक्स ना बने। एक मॉड्यूल जो है डिफरेंट मॉड्यूल भाई क्या कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोड को डिफरेंट स्पेसिफाई करेंगे ताकि आपको डिबगिंग करने में ईजी हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम अपने राउटर्स को उठाएंगे, सारे राउटर्स को, और हम क्या करने वाले हैं, हम इसको कॉपी कर देंगे कहाँ पे, यूज़र राउटर में। और यहाँ पे एक कन्वेंशन है कि भाई आपको जो यूजुअली नेम देते हैं वो राउटर ही देते हैं, यूज़र राउटर नहीं देते हैं, क्योंकि आपके डिफरेंट फाइल्स होने वाली हैं। और यहाँ पे हम यूज़र राउटर से हमें पता चल रहा है कि ये यूज़र राउटर है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एक ही नाम देते हैं। और सिर्फ यहाँ पे हमको एक्सपोर्ट क्या करना है, हमको सिर्फ एक ही फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना है, एक ही वेरिएबल को। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउटर को डायरेक्टली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से
एक्सपोर्ट कर देंगे, राइट. नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर, since we are using express module over here, so we have to import the express module as well. So require express, right. और उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़र कंट्रोलर भी यूज़ करना पड़ेगा. सो यूज़र कंट्रोलर को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा. सो यूज़र कंट्रोलर, राइट. So I hope till now you understood whatever I have done over here, and from here you can remove this user controller. Now we have to use that router, means इस user route को भी यूज़ भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं. तो user router इक्वल टू require routes user router. So दैट्स हाउ वी हैव रिफैक्टर आवर कोड. हमने क्या किया, अपने अपने कोड को डिफरेंट तरीके से कर दिया है. तो आप देख सकते हैं कि हमारे मिडलवेयर एक ही जगह पे आ गए हैं और हमारा कोड क्या कितना क्लीन हो गया है, कितना सिंपल लैंग्वेज में हो गया है. अब कितनी ईजिली आप समझ सकते हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रन दिस एप्लीकेशन. सो फॉर रनिंग द एप्लीकेशन व्हाट आई एम गोइंग टू राइट nodemon app.js and press enter. So there is some error is happening over here. It is saying that cannot be related because running script is disabled on this server. Disable हो गई ये. So let me make it clear, and I'm going to start the server with node app.js. So as soon as you will press enter, your server will start at the 3000 port. And now I'm going to get into my postman so that we can request our code. So यहाँ पे हम postman में आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम एक get request भेजने वाले हैं API को. and as soon as you will press enter, hooray, your data has came. That is first data has JavaScript boy, right. So if I get back into my code editor and if I see our data, so first name is JavaScript boy only. So you can see we have created our own routes, we have refactored our code. So if you have any kind of query, अगर आपको कोई पास कोई भी query हो, so please comment it out below in the comment section. I will definitely reply it. And if you like my content, please share my channel, subscribe my channel, because more and more people reach and more subscriber will increase. I will get motivated. I will create more and more quality content so that you can get benefit from it. So for now, I have covered the whole Node.js. I have covered the whole Express. And I hope everything I have covered over here, whatever the main things are there, whatever the right now in demand industry, whatever how your industry is working right now. So I have covered most of the topics. And in the next lecture, I will start MongoDB. So please share this channel because you are going to learn lots of things about full stack web development. So thank you so much for watching this video. See you in the next lecture.